आज हम क्या करने वाले हैं is it's going to be a major scale workout. So I'll be telling you some exercises, and the intent of course is finger dexterity, being comfortable with the major scale, but at the same time आपको improvisation में भी काफ़ी help करेगा, because I'll be telling you some ways in which you can actually use these workouts for your phrasing as well. So it'll be good fun. Yeah, so do you have any questions before we start? Any normal kuch bhi? Any questions? Till we wait for the other guys to join in as well. Any questions? Sir, can you hear me? Yeah, of course, Ashwin, bolo. Sir, I don't know, like some in your videos, I see some, some rubber band or something. Like Yeah. strapped to, like, This so thing, right? does it work like a capo or? No, yeah, it doesn't work. So it actually works as an anti-capo. So that's what it is. Okay. And see, capo basically presses the strings, right? Capo से strings press हो जाती हैं. इससे strings press नहीं होती. इससे mute होती हैं. So that's why I call it the anti-capo. But इसका reason ये होता है, ये मैं generally तब use करता हूँ if I'm recording and all. क्योंकि क्या होता है, recording करते समय ना मेरा mic जो होता है it's very close to the guitar. तो if you play something, no, if for example if you play, अब जैसे मैंने प्ले किया, मैंने ये स्ट्रिंग प्ले करी, मैंने फिफ्थ स्ट्रिंग प्ले करी, फिर मैं फोर्थ स्ट्रिंग पे आता हूँ, सॉरी, तो मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग अभी भी हिल रही है थोड़ी सी, वो एक्सीडेंटल थोड़ा सा टच हो जाता है कभी कभी, कभी एकदम से उठाते हो तो ये साउंड आती है ना. तो इसको करने से फायदा क्या होता है कि म्यूट जो आप स्ट्रिंग को प्रेस नहीं कर रहे वो कभी बजेगी नहीं, एज कंपेयर टू. सो दिस इज बेसिकली अ फ्रेट रैप. फ्रेट रैप होता है, यू कैन एक्चुअली बाय फ्रेट रैप एज वेल. सो आई हैव दिस, ये गिटार में मेरा फ्रेट रैप लगा हुआ है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, बट फ्रेट रैप इज खरीदना पड़ता है. ये मैंने ऐसे अपनी वाइफ का रबर बैंड लिया, रबर बैंड लगा दिया मैंने. A lot of people ask me about this actually. Nobody asked me about the fret wrap as much as they asked me about the rubber band. किसी ने तो अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट्स में लिखा था, सर आपके गिटार में बैंडेड जो लगी हुई है क्या है. अभी जस्ट लास्ट वीक somebody had written, आपकी गिटार में बैंडेड क्यों लगी हुई है. तो anyways, but yeah, so that's the intent. Yeah. So that's why I keep it here, because if I'm playing something मैं इसको immediately ऐसे कर सकता हूँ ना. So इसका बस इसका प्रॉब्लम क्या है कि you can't play any open chords, right? So अगर मैंने ऐसे कर दिया तो I can't play. So it won't sound nice. But if you're playing something, if you're playing a riff, तब आपको दिक्कत नहीं होगी, right? Open strings इसमें नहीं बजाएंगी, लेकिन yeah, that's the intent of this. It's called a fret wrap. You can buy it or you can just use a rubber band. Yeah. Any more questions? So Rahul, did you know कि आज major scale workout होने वाला है? Yeah, I read the topic. Yeah, okay. Which is why I saw that you're already practicing your scales and all. मतलब सही है एक बार. तो कुछ दिन पहले इस पे वीडियो देखा था, the stair method. So I was just, it's like the major scale, like a stair. Okay. So basically, what you're doing, you're just doing 1 2 3 2 3 4. Yes. But you're actually doing it in some fancy way. Not in the same position. Yeah. Sliding form. Yeah. No, I know. I understood that, but मैं वो sounds में बोल रहा था you were playing a 1 2 3 2 3 4 and all. Okay. 1 2 3 4. Yeah, exactly. That's a good workout as well. But yeah, आज जो है ना, so see, it's जो मैं बताने वाला हूँ, it's a pretty common thing, but there'll be some things जो आपको online नहीं मिलने वाली, because some of these are my own things. But yeah, it'll be good fun. And I plan to continue with these workouts for a while. Maybe, early next 4 classes, we'll just do these workouts, because a lot of you have been asking me about improvisation and all. So I think these workouts actually have multiple uses. जैसे मैंने बताया ना, इसको आप phrasing में तो use कर ही सकते हैं. But of course, these are great for building finger dexterity, finger agility, ये सब चीज़ों के लिए भी. ठीक है, चलो, let's just start. So what we'll do is we'll just take the C major scale, or we can take any major scale, right? And everybody knows the notes of a C major scale. Ashwin, what are the notes of a C major scale? So C, D, E, F, G, A, B.
Correct. C, D, E, F, G, A, B, C, right? So no accidentals. Key signature is 0 sharps and 0 flats. मतलब no accidentals, कोई sharp नहीं है, कोई flat नहीं है. Would you know the major scale for, let's say, D major? Would you remember it? I have to see and That's okay. That's okay. But if I were to say कि formula पता है major scale का? क्या होता है formula? root whole step whole step whole step half step whole step whole step whole step half step. Correct, right? So अगर ये पता है तो then you can actually plot it as well, right? So now if I say, tell me the D major scale, वो क्या होएगा? Yeah, I can plot it. So tell me. So just do that mentally. Don't use a copy pen. Just tell me mentally. Okay. D के बाद क्या आएगा? D के बाद E आएगा. Right. E के बाद? Extra. Very good. Then G. Mm-hmm. Then A. Right. B. Mm-hmm. C sharp. Right. Then D से. Correct. Right. देखो मैं हमेशा अपने सब सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ. इनफैक्ट राहुल, केशव, इवन जैकलिन, I'm pretty sure that they remember their major scales by now because ये पहले से ही क्लासेस कर रहे हैं. So I just say कि you should know it like that, like the back of your hand. But अगर प्लॉट भी कर रहे हो ना, so I'll just give you a very quick tip. जनरली क्या होता है कि लोगों को पता है कि होल है और हाफ है. होल स्टेप हाफ स्टेप तक हो जाता है. उसके बाद होल स्टेप में ना थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज पता नहीं लगता कि वो हाफ स्टेप कब डालना है, जो आखिरी वाला हाफ स्टेप होता है ना. सो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस. एनी मेजर स्केल यू डूइंग, शुरू में तो कैलकुलेट करो होल हाफ, राइट? सो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द ई मेजर स्केल. ई के बाद होल हाफ, सॉरी एफ शार्प, देन अनदर होल जी शार्प, देन हाफ स्टेप ए. अब ए पे आ गए ना, अब आंखें बंद करके होल स्टेप लगाते रहो टिल यू रीच 1 हाफ स्टेप बिलो द रूट. सो हमारा किसका मेजर स्केल था? ई की बात कर रहे थे ना. तो ई का जो पिछला नोट होता है, जो मतलब 7th नोट होता है, वो तो हाफ स्टेप नीचे होता है ना. होल हाफ, होल हाफ से एंड कर रहा है ना फॉर्मूला. तो जो 7th नोट है, दैट इज एन हाफ स्टेप बिलो एन ई विच इज अ डी शार्प. तो मतलब ई टू एफ शार्प टू जी शार्प के बाद ए पे आ गए. इसके बाद आंखें बंद करके होल स्टेप लगाते रहो टिल यू रीच द डी शार्प. तो ए के बाद बी के बाद सी शार्प के बाद डी शार्प का सीधे ई. आई एम जस्ट सेइंग कि होल हाफ तक याद करो, उसके बाद होल जो लगाने बस जल्दी लगाते रहो. अगेन मैं द एक्सपेक्टेशन इज नॉट दैट यू शुड कैलकुलेट. आई एम जस्ट लेटिंग यू कि इन द स्टेज दैट यू आर इन राइट नाउ, होल हाफ याद कर लो, बाद में क्विकली होल करते रहा करो, राइट? एंड ऑफ कोर्स best in class would be something like, okay, so Keshav, what is the F major scale? F, G, A, B plus C, D, E, F. What is the A major scale? A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Correct. So like that. So he's not really calculating, right? He's not saying A whole step B whole step C sharp. That's how I would want it to be, right? So remember your major scales, and you just need to remember your natural major scales. अगर मान लो किसी ने शार्प पूछ लिया, या अगर let's say if I say मैं पूछता हूँ कि चलो what's the A sharp major scale, ठीक है? तो A sharp major scale करना है, just take your A major scale और सब में शार्प लगा दो. That's it. If somebody says what is the G flat major scale, take your G major scale, flat लगा दो. G flat, A flat, B flat, C flat, D flat, E flat, F, G flat. That's it. Right? So just remember your natural major scales. Sharps वगैरह जो accident होता है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती. Same thing for intervals as well. अगर intervals याद करने, just remember your major scale. That's it. अगर major scale याद कर लिया, सब कुछ पता लग गया. ठीक है, चलो. तो theory की तो of course there are lots of classes in the academy itself. So Ashwin, you just go through all the previous workshops that we've done. उसमें तुम्हारे को बहुत content मिल जाएगा. ठीक है, चलो. तो हमारा मेजर स्केल सबको पता है निकालना, ठीक है? एंड नाउ व्हाट वी डू इज वी विल जस्ट ट्राई टू प्लॉट इट. अब प्लॉट करना ही बहुत सिंपल है. जो नोट्स हैं वी विल जस्ट टेक द सी मेजर स्केल ओनली बिकॉज इट्स द इजीएस्ट टू रिमेंबर, राइट? नो एक्सीडेंटल्स, की सिग्नेचर 0 शार्प 0 फ्लैट्स, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम 6th स्ट्रिंग से करेंगे. जैसा आपको याद होगा, मैंने अपने केज की वर्कशॉप्स में भी बोला है, पेंटाटोनिक की वर्कशॉप्स में भी बताया है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट फ्रॉम द रूट, राइट? पेंटाटोनिक स्केल्स भी मैंने बताया था ना, रूट के साथ करने हमने, टू द लेफ्ट, टू द राइट,
सिक्स स्ट्रिंग में, फिफ्थ स्ट्रिंग पे टू द लेफ्ट टू द राइट, फोर्थ स्ट्रिंग में टू द लेफ्ट टू द राइट, विच इज वाई द पेंटाटोनिक स्केल्स जो मैंने सिखाए हैं, आई हैव टॉट यू 6 पोजिशंस वर्सेज 5 पोजिशंस जो आपको ऑनलाइन मिलती हैं. सेम चीज मैंने केज में बताई थी. केज में भी डोंट रिमेंबर इट लाइक CAGED, रिमेंबर इट एज root on the sixth string left right, root on the fifth string left right, root on the fourth string left right. Again, so मेरी भी केज की 6 पोजिशंस थी. आई होप इट्स मेकिंग सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ. जिन्होंने मेरी पहले अटेंड करी हुई है केज्ड वर्कशॉप्स, पेंटाटोनिक वर्कशॉप्स, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सेम थिंग गोज फॉर योर मेजर स्केल्स एज वेल. मेजर स्केल्स में भी आई वुड से कि ऑफ कोर्स यू कैन रिमेंबर ऑल द 7 पोजिशंस, but I don't think of it like 7 positions. I think of it like 9 positions. 3 positions on the 6th string, 3 positions on the 5th string, 3 positions on the 4th string. ठीक है, so हम आप कोई भी position ले सकते हो. And I'll just quickly demonstrate what I mean by 3 positions. Even though आज की क्लास में हम वो नहीं करेंगे, we will not be doing all the 9 positions and all. We'll take one position, उसमें आपको एक workout बताने वाला हूँ. Okay, so what I mean by 3 positions per string is, अगर मान लो जैसे मैं C मेजर की बात कर रहा था, तो C मेजर में हमारा रूट नोट क्या आएगा? What's the root note in the C major scale? It is C, right? Yeah, I could see some people say C. ठीक है, तो C है, तो C हमारा, हम क्या करेंगे, हम अपनी 6 स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो 6 स्ट्रिंग पे हमारा C नोट कौन सा होता है? It's the 8th fret, right? अब ये मेरा C नोट है. अब मेरे को नेक्स्ट प्ले करना है D, then E, then F, G, A, B, C, right? So ये मेरे को अपने पूरी 6 स्ट्रिंग्स पे प्ले करना है. Now if I am playing the C major scale with the root on the 6th string, मेरी पहली पोजीशन होती है when my little finger is on the C note. Again, you don't need to remember this. मैं in fact what I'll do is इस वर्कशॉप के साथ ना एक PDF बना दूंगा, and वो PDF आप डाउनलोड कर लेना, उसमें I'll just do all of that, right? But if I would just quickly demonstrate to you, so मेरा अगर मैं little finger को C पे रखता हूँ, right? तो next note I need is a D. तो D मेरा कहाँ आता है? 5th string के 5th fret में. Then E, then F. See, अगर आप साथ में करना चाहते हो, you can do that. Do you want to do this? Do you want to plot it yourself? कि should I just tell you ऐसे कैसे करना है? How do you want to do it? Do you want to plot it on your own? कि should I just tell you? मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं बता ही देता हूँ आपको. Don't plot it because I want today's class again to be focused on not finding the major scale, but to do those workouts जो मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, तो अगर मेरे को करना है तो C, D, E, F, G, A, B, C, D, E. That's your position 1. Position 1 basically is I'm starting with the little finger. Again, don't try to replicate what I'm doing. Don't do that. वो निकालने में टाइम लगेगा आपको. बस PDF देख लेना. So this is position 1. ये little finger मैंने रखी. अब I'm on the left of my root. Right? So मैंने little finger से स्टार्ट करा. My position 2 is मैं अपनी middle finger से स्टार्ट करता हूँ. Right? मैं अपनी middle finger से स्टार्ट किया. Position 3 is मैं अपनी first finger से स्टार्ट करता हूँ. Now I'm on the right. Right? So once again, let me just go very slow for you. ठीक है? Position 1 मेरी थी, मैं अपनी little finger से स्टार्ट करा and I was on the left of my root. तो मैंने प्ले करा. Sorry. ये मेरी पोजीशन 1 थी, मैंने लिटिल फिंगर से किया. पोजीशन 2 मैंने मिडिल फिंगर से किया. मिडिल फिंगर से स्टार्ट किया मैंने. सॉरी. एंड मेरी पोजीशन क्या थी? पोजीशन 3 थी मेरी, मैंने फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करा. आई एम प्लेइंग ऑन द राइट. ठीक है, तो मेरी 2-3 पोजीशंस है. तो बेसिकली आई डोंट वरी, वील डू अ प्रॉपर वर्कशॉप ऑन दिस एज वेल, जिसमें हम सारा वील ट्राई टू मास्टर द मेजर स्केल ऑल ओवर द फ्रेट बोर्ड. ठीक है, तो वील डू दैट, डोंट वरी. लेकिन ये हमारे 3 पोजीशंस है. सिमिलरली 3 पोजीशंस हमारी 5th स्ट्रिंग पे हम करेंगे, 3 हम 4th में करेंगे लेटर. बट हमने क्या करना है, हमने इन्हीं शेप्स को याद करने के लिए हमारे को थोड़े से वर्कआउट जो करने होते हैं, जैसे राहुल वाज डूइंग ना 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एंड ऑल, वो ऐसे वर्कआउट्स हम करने वाले हैं.
ठीक है. तो now I'll tell you why is my method different from what you will see online. Of course, एक तो यही आपको difference दिख गया कि I'm not teaching you 7, I won't teach you 7 positions later, I'll teach you 9 positions. But the other difference is I never recommend कि आप पूरे के पूरे scale को ना टर करके पूरा याद कर लो. जैसे मैंने भी play करा ना, this is not something which I recommend, because इससे आप करते हो ना तो you just remember कि यहाँ पे हमारा रूट है, that's it. You just remember कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया. I always suggest कि you break it into octaves. Octaves करने से फायदा क्या होता है? You think of it like 2 positions. मतलब step ऐसे होता है. तो you know कि ये भी एक मेरा रूट है, right? Then you know, so you know कि एक तरह से हमने दो separate scales लिए हैं, 2 different octaves में. तो we keeping these as separate entities. We're not thinking of it as one big position. बात समझ में आ रही है? Don't worry. अभी जब पूरा कर लोगे ना, then you'll by the end of this workshop you'll realize कि difference क्या है. So that is one big difference मेरे हिसाब से. But there's another difference and we'll come to that difference later on. वो बाद में बताऊंगा आपको क्या है. And that is something which जब भी मैं अपने students को बताता हूँ ना, they always get that aha moment because it's really cool. Okay, so cool. चलो तो हम क्या करेंगे? We'll take again ये 3 positions हैं, तो we will take the second वाला. And the reason why I choose the second वाला is because अगर मैं पहली वाली पोजीशन फिर से प्ले करूंगा ना, you will realize कि मेरे को अपना हाथ बहुत मूव करना पड़ रहा है. So if I do this, अब मैं लेफ्ट में गया, फिर मैं राइट में आया, नहीं तो मैं इधर गया, फिर मैं इधर आया. सिमिलरली हमारी पोजीशन जो 3 थी वो थी, इसमें मैं थोड़ा सा इधर करके जा रहा हूँ. लेकिन मेरी जो पोजीशन 2 है उसमें आई एम जस्ट स्टेइंग इन वन पोजीशन. इसमें मुझे कुछ ज़्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगेन ये मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू टू नो. ओके, डोंट थिंक कि यार ये तो बहुत तेज बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को. डोंट वरी, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर राइट नाउ. ठीक है, ये हम बाद में करेंगे. तो अभी हम ये वाली पोजीशन लेने वाले हैं. तो व्हाट वी विल डू इज, अब यहाँ पे मैं आपको स्लोली बताता हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस ऑन योर ओन. ठीक है, हम अपनी मिडिल फिंगर को रखेंगे रूट पे. तो हमारा 8th फ्रेट में हम अपनी मिडिल फिंगर रखेंगे. बाय द वे, हमारी जो मेमोराइज द फ्रेटबोर्ड की वर्कशॉप थी जिसमें मैंने बताया था कि फ्रेटबोर्ड के नोट्स किस तरह से याद करने हैं, तब हमने ये वाली पोजीशन करी थी. ठीक है, एनीवे, सो हमारे मिडिल फिंगर को हम रखेंगे 8th फ्रेट में. अब लिटिल फिंगर को हम रखेंगे 10th फ्रेट में. दैट्स योर डी नोट, सी डी, राइट. तो हमने प्ले करा 2-4 प्ले करा ना. 6th स्ट्रिंग में हमने प्ले करा 2-4, मतलब 2nd फिंगर देन 4th फिंगर. अब नीचे वाली जो स्ट्रिंग है 5th स्ट्रिंग, इसमें हम प्ले करेंगे 1-2-4. These notes are C, D, E, F, G. ठीक है, और इसके नीचे वाली स्ट्रिंग पे हम प्ले करेंगे 1-3-4. C, D, E, F, G, A, B, C. So that's your major scale. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Right? So once again, हम अपनी जो भी हम मेजर स्केल प्ले कर रहे हैं उसके रूट को हम अपनी मिडिल फिंगर से प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग पे. सो मिडिल फिंगर इज योर फिंगर नंबर 2. फिर हम प्ले करेंगे फिंगर नंबर 4, अज्यूमिंग 1 फिंगर पर फ्रेट, राइट. सो 2-4, देन नेक्स्ट स्ट्रिंग पे 5th स्ट्रिंग पे हम प्ले करेंगे 1-2-4, देन 4th स्ट्रिंग पे हम प्ले करेंगे 1-3-4. सो अब ऐसे करके हम वापस अपने सी नोट पे आ गए हैं. सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी. ओके, सो सबसे पहली चीज व्हिच आई वांट यू टू डू इज अबाउट 5 टाइम्स आप सिर्फ ऊपर नीचे प्ले करो इसे. And try to do an alternate picking. So you can start with a down pick if you want. Down, up, down, up, down, up, down, up. You can also do an up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down. Just keep doing this a couple of times. ठीक है, करो बैठ के भी ये जरा. You can stay unmuted, लेकिन just practice this. 2-4, 1-2-4, 1-3-4. 4-3-1-4-2-1-4-2. करो इसको प्रैक्टिस पहले, and you know, take about 2-3 minutes, and then I would want one of you guys to volunteer and just play it.
एंड जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वंस अगेन इसका जो पीडीएफ होएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा with the video only in the academy, so you can just download the PDF and you can practice these scales as well. 2 4 1 2 4 1 3 4. Okay, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना अश्विन, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, जितना मैंने बोला उतना करो. But okay, so इधर मैं एक और चीज़ बताता हूँ. So Ashwin, this is for you here because I could see how you're playing. When you play, no, always remember this. You're probably a little bit in the beginning stage, इसलिए ये गलती कर रहे हो. But पहली चीज़ तो मैंने बताया ना कि you have to activate your wrist. तो keep your palm on the saddle. ठीक है, हाथ को आगे नहीं रखना. You might see me, हाँ, पीछे रखना है, ठीक है. The other thing is, अब जैसे हम प्ले कर रहे हैं ना 2 4 1 2 4. अब जब मैं 1 2 4 प्ले कर रहा हूं तो यू डोंट नीड टू लिफ्ट योर फर्स्ट फिंगर. नो, अभी तुम क्या कर रहे हो, 2 देन उठाया, फिर 4 देन उठाया, देन 1 2 4. यू आर डूइंग दिस. ये नहीं करना ना. पिछली वाली स्ट्रिंग्स को दबा के रखो, 2 देन इसको दबा के रखो, 4 देन 1 2 4 में इसको 1 रखा, इसको दबा के रखो, देन 2 दोनों को दबा के रखो, देन 4. राइट, इसको बेसिकली फ्लाइंग फिंगर्स बोलते हैं. जो तुम करते हैं ना, उंगलियां ऐसे उड़ती जा रही हैं. ये नहीं करना हमारे को. नेवर डू दिस. ओके, सो अगर आगे जा रहे हो तो पिछली फिंगर्स को मत उठाओ. ठीक है, उससे एक तो फायदा होता है कि तुम्हारा फिंगर्स में थोड़ी कंट्रोल बनता है. सेकेंडली, तुम उंगली को ऐसे उठाते हो ना तो इट विल जस्ट टेक यू मोर टाइम टू उठा के वापस से रखना. इट जस्ट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम. बट अगर इसको दबा के रखोगे ना तो इससे ज़्यादा फिंगर में कंट्रोल होगा. सो इट विल बी 2 4 दबा के रखा हुआ है, देन 1 2 4 दबा के रखा हुआ है, देन राइट. So, सिर्फ इतना करो, आगे मत जाओ अभी. ठीक है, उठाना नहीं. डोंट लिफ्ट योर फिंगर्स. उठाओ मत, फर्स्ट फिंगर मत उठाओ. स्लोली करो, एकदम स्लो प्ले करो. ठीक है, एकदम स्लो प्ले करो, बट इंश्योर की फिंगर्स उठानी नहीं है. सॉरी, कहाँ पे मैं. Because I joined the class and this is the only question they have taught me, like one-on-one session, they taught me this. So I have been practicing like lifting my fingers continuously. So don't do that. Never do that. Never do that. ये क्या, you're taking lessons कहीं पे? Actually I'm taking class. Which is good. One-on-one. Which is good. But never do. See, अगर उन्होंने नहीं बोला होता and you're doing this, then हो सकता है कि you didn't catch the right things. But if they've specifically told you कि उठाना है, then it's a very wrong guideline. Don't do that. No, he didn't say it to lift it, but maybe I'm doing it wrong. So. Yeah. So I assumed you said कि उन्होंने बोला कि उठाना है, but yeah, उठाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठाना. Okay? He just said I have to play this, but he never said I shouldn't lift my finger. Yeah. So you shouldn't. It's okay. It's not important what he said, what he or she said, but नहीं उठाना बस. ठीक है? Yeah. And go very slow. चलो, ठीक है, cool. Who can? Okay, so I think let's go with Keshav only because he's the only one who's actually kept his camera on. Keshav, quickly, can you play me the C major scale? Just strings number 5 6 5 4. Yeah. कोई नहीं. It's okay. That's fine. ठीक है, तो I know that you were also trying your level best not to lift your fingers, तो इसलिए थोड़ी सी गलतियाँ हो रही थी, but it's okay. Don't worry. You just go slow. I also have that bad habit. Yeah. So that's okay. Don't worry.
यू जस्ट नीड टू कॉन्शियसली वर्क ऑन इट, ठीक है? तो स्पीड वगैरह पे ध्यान मत दो, यूज अ मेट्रोनोम इफ यू हैव टू, गो वेरी स्लो, गो, बट इंश्योर कि हमने फिंगर उठानी नहीं है, ठीक है? चलो ये हो गया हमारा. नाउ आई टेल यू व्हाट द वर्कआउट इज. द वर्कआउट इज, ऑफ कोर्स पहला वर्कआउट तो यही है, अप एंड मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग हमने कर दिया, सी डी ई एफ जी ए बी सी, देन डिसेंडिंग सी एफ सी बी ए व्हाटएवर जो पीछे चले गए. नाउ जो वर्कआउट है ना, दैट इज कि आपने यू हैव टू मूव अप इन थर्ड्स. तो मूव अप इन थर्ड्स मतलब हम पहले सी नोट प्ले करेंगे, देन एक नोट छोड़ के जो नेक्स्ट नोट होता है उसको प्ले करेंगे, विच इज एन ई, राइट? तो सी के बाद आता है डी को हमने स्किप किया, देन प्ले करा ई. अब नेक्स्ट डी के बाद नोट था डी, सॉरी सी के बाद नोट नेक्स्ट था डी. अब डी के बाद हम प्ले करेंगे एफ. सो हर नोट का हम एक थर्ड अप नोट प्ले करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोट, उसका थर्ड प्ले करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोट, उसका थर्ड प्ले करेंगे, राइट? सो बेसिकली इट विल बी सी ई, देन डी एफ, then E, G, then F, A, then G, B, G, B, then A, C. Okay? So that's the workout. And इसमें मैं आपको एक बहुत ही cool तरीका बताऊंगा just to memorize and be more comfortable with this pattern. By the way, अगर आप jazz में देखेंगे ना, jazz में you do this a lot. Jazz में this is a very very popular phrasing. तो आपके जो आपका हॉर्न सेक्शन होता है ना, हॉर्न सेक्शन डज दिस अ लॉट, मूविंग अप इन थर्ड्स, मूविंग अप इन फोर्थ्स. तो बट इट्स अ ग्रेट वर्कआउट फॉर ऑल स्टाइल्स, ठीक है, नॉट जस्ट जैज म्यूजिक. बट या यू कैन डू वन, मतलब आप क्या करोगे, 1 3, तो आपने सिर्फ ये सी तक ही पहुंचना है, जो हमारा एक ऑक्टेव हाई वाला सी था ना, वहीं तक हम जाएंगे. सो जस्ट एक बार इसको, एंड इधर मैं माई रिकमेंडेशन टू यूज, इवन दो मैं इसमें वो पीडीएफ डाल दूंगा, डाउनलोडेबल पीडीएफ था, उसमें देख सकते हैं. लेकिन इसको ना ट्राई टू डू दिस मेंटली, कि हमने सी से स्टार्ट करा, फिर हम आगे वाले पे जाएंगे. सो उसका ये वाला हमने स्किप किया, ये प्ले करा. पहले अभी सोचो, दिमाग लगाओ, इसको स्किप किया, ये आया, देन इसको प्ले किया, इसको स्किप किया, ये आया, देन. सो ट्राई टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन. आप भी खुद करो ये अपना. And please attend classes. Okay, don't just watch recordings. Class attend भी किया करो. Well, a lot of people do attend, but whoever is watching this and not attending class, come for the workshop. ठीक है? So C के बाद हम D की जगह E प्ले करेंगे. Then C प्ले कर लिया तो हम D प्ले करेंगे. अब D के बाद हम E नहीं प्ले करेंगे, F प्ले करेंगे. ऐसे होगा C, E, D, F. तो हर नोट का बेसिकली जो थर्ड है उसको प्ले कर रहे हैं. So do this, and then I'll tell you a very very cool way to remember this exercise. This is my own thing. Take about 2 minutes because it's ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में. And then I'll tell you कि अगर फिगर आउट नहीं हो रहा, I'll just tell you एग्जैक्ट फ्रेट्स क्या प्ले करने हैं. Ashok, are you there? Yes, I'm here. ये अशोक आपके साथ मैंने मेजर स्केल किया था क्या, जब पहले आप क्लासेस लेते थे? नहीं. We didn't do major scale ना? Okay. Cool. We just did the modes actually. Oh, we did the modes क्या? Yeah. पर हमने पूरे 7 modes करे थे. It's been a while, so I don't remember. Okay. Yes, it's been like 2-3 years I think. Yeah. चलो ठीक है. Cool. So just do this. आप भी करिए. And yeah, I'm doing that. Yeah. Okay. Cool. Thirds, right? Yeah. Move up in thirds बस. So 1 3 5 मत करना. 1 3 2 4 ऐसे करना बस. Yeah. Right. So don't do 1 3 5. Don't do proper arpeggios. Yeah. चलो मैं वैसे करता हूँ, बता देता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा टाइम ना लगे. बट बेसिकली हम अपनी मिडिल फिंगर को रखेंगे अगेन 8th फ्रेट में, जो हमारा रूट नोट है. देन वील प्ले 5th स्ट्रिंग का. सो आई विल जस्ट टेल यू, आई वोंट टेल यू फ्रेट्स, आई विल जस्ट टॉक फिंगर्स. ठीक है? 2 4 1 2 4 1 3 4 हमने करा ना,
तो उसी के रेफरेंस से बताता हूँ, इट विल बी अ लॉट ईजियर, ताकि उसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं. अगर मैं फ्रेट्स बोलूँगा ना तो आपको ए मेजर बोलूँगा तो आपको दिक्कत होगी याद करने में. सो वील जस्ट टॉक फिंगर्स. तो आपने मिडिल फिंगर रखी अपनी 6th फ्रेट में 2, देन यू प्ले 5th स्ट्रिंग 1. ओके, सो 6th स्ट्रिंग 2nd फिंगर, 5th string 1st finger, then 6th string 4th finger, so 6 4, then 5 2. समझ में आ गया ना नॉमेनक्लेचर क्या है? सो 6th string पहला नंबर स्ट्रिंग है, सेकंड नंबर फिंगर है. सो 6 2, then 5 1, then 6 4, then 5 2, then 5 1, then 5 4, then 5 2, then 4 1, then 5 4, then 4 3, then 4 1, then 4 4, then 4 3, then 3 1, then अपना ये 4th string 4 4. Okay, so once again let me just go very slow. ये हमने जो डी है, ये हमने हायर ऑक्टेव का डी बजाया, बट दैट्स ओके. हम आगे वाले भी करेंगे अभी, बट अभी सिर्फ ये हो रहा है. सॉरी. एटलीस्ट फ्रेट्स पर लगे. स्लोली प्रैक्टिस करो ऐसे. दिस माइट टेक टाइम, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा आपको, लेकिन बिलीव मी दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज. ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. दिस इज बेटर देन जस्ट डूइंग दैट इज. उससे कुछ फर्क नहीं, उससे कुछ फायदा, उससे आप स्केल याद कर लोगे, जो ये होता है ना, इससे आप स्केल याद कर लोगे, लेकिन इट वोंट रियली हेल्प यू इन योर फ्रेजिंग एज मच. ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप फ्रेजिंग में यूज कर, इसको आप अपनी इम्प्रोवाइज करते समय आप सेम पैटर्न पूरा प्ले कर सकते हैं. इट विल साउंड वेरी नाइस. ठीक है, वंस अगेन. एकदम स्लोली प्ले करना है. इज देयर एनीवन हु इज रेडी विद दिस? वुड एनीबडी लाइक टू वॉलंटियर एंड प्ले दिस? एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर गलती होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. गलती करो, अच्छी बात है गलती करना. जैकलिन, आर यू वॉलंटियरिंग और आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन? I volunteer. Oh wow! I've never. I don't think I've ever heard you play. So that's. Please. Da 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 da. Just end it. Da da. I know you also ended on a C only, but मैं बोल रहा हूँ एक कदम आगे जाओ. Da da da. Do it again. Do it again. Can I do it again? Yeah, do it again. I'm having a little problem coming up. I can go down, but coming up is a... That's okay. That's okay. I could think a little bit. Give it a shot. Give it a shot. I just go down. Da 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 da. No, don't stop. No, wait, hold on. जो मैं बोलो वो करो. Da
So dun 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 dun. Just don't stop there, no. You're playing the B, right? So you're playing. So you ended there on a B, which is fine. But मैं कह रहा हूँ उसके आगे जाओ. So. So I want you to end एक आगे जाके then go back to a B. So I have to end on the fourth string, on the third string? No, you don't have to end on the third string. Currently you're ending on the fourth string, which is fine. You're ending on the higher B, no? Which is fine. लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके एक आगे चले जाओ. It's okay, you don't have to, but I'm just saying उसके आगे चले जाओगे then you will just and then go back to a B. Sorry. It's okay, don't worry. जितना कर लिया वो भी बहुत सही है. That's okay, don't worry. That's great. Good job. ठीक है, चलो, excellent. So now I'll wait. Now I'm just thinking, should I tell you the trick right now, or should I make you do the same exercise on a different pattern? Chalo, let me just make you do the same exercise on a different pattern, rather the same pattern on a different octave, and I'll tell you the trick बाद में. ठीक है? तो हमने अभी क्या करा? हमने अपना 6th string to 4th string तक हम C major scale हमने किया था, correct? 2 4 1 2 4 1 3 4. अब हम उसके नीचे जाते हैं. ठीक है, सो हम क्या करें, नीचे जाने के हमारी लिटिल फिंगर से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द 4th फ्रेट, सॉरी ऑन द 4th स्ट्रिंग, राइट. हमने किया था ना 2 4 1 2 4 1 3 4, तो हम यहाँ पे एंड किए थे अपने सी नोट पे जो हमारा 4th स्ट्रिंग का 10th फ्रेट था. अब यहाँ पर हमारी लिटिल फिंगर है. अब आप प्ले करो 4, देन 3rd स्ट्रिंग पे 1 2 4, सॉरी 1 3 4, 4 1 3 4, C D E F, right? Then G, then 2nd string of 2 4, and then 1st string of 1 2 4. So 4 1 3 4 2 4 1 2 4. ये हमारा सी हो गया. इसके हम आगे तक जा रहे हैं. सो वंस अगेन हमने अपनी 4th स्ट्रिंग पे रूट को अपनी लिटिल फिंगर से प्ले किया है 4, देन 1 3 4, देन स्ट्रिंग नंबर 2 पे 2 4, देन 1st स्ट्रिंग पे 1 2 4. यहाँ पे हमारा स्केल खत्म हो गया, बट वी जस्ट गोइंग आगे तक, right, till a D. पहले हमने किया था 2 4 1 2 4 1 3 4. अब हम इसके आगे जा रहे हैं 4 1 3 4 2 4 1 2 4. एंड जैसे मैंने बताया, द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इसको डिवाइड करो इनटू 2 पैटर्न्स इज बिकॉज अगर आप ऐसे पूरा याद करोगे ना, विच इज ऑल्सो राइट, लेकिन इसमें हमारे को जनरली पता ही नहीं होता कि हमारा नेक्स्ट रूट कहाँ पे. हमारे को सिर्फ ये पता है कि ये रूट है. ये भी शायद हमारे को पता होएगा कि ये हमारा रूट है 1st स्ट्रिंग में, सेम फ्रेट, लेकिन बीच में हमारा रूट कहाँ आता है, यहाँ पे लोगों को हमेशा दिक्कत होती है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जस्ट ब्रेक इट इनटू 2 सेपरेट पैटर्न्स. दूसरा, ठीक है, तो हमारा 2nd पैटर्न हो गया. तो हम पहले क्या करेंगे, हम वही 2nd पैटर्न को अप एंड डाउन प्ले करेंगे. Go very slow. You don't have to follow me. एकदम स्लो प्ले करो, मेट्रोनोम यूज करो, ऑल्टरनेट पिकिंग करो. एंड देन हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, वी विल डू द 1 3 2 4. सेम चीज इसमें भी. ठीक है, तो ये वाला जो है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं चाहता हूं आप खुद फिगर आउट करो. सो एटलीस्ट पैटर्न सबको क्लियर हो गया. 4 1 3 4 2 4 1 2 4, ये हमारा पैटर्न है. ठीक है, हमारा मेजर स्केल
4 1 3 4 2 4 1 2 4। अब इसमें आपको क्या करना है, 4 से स्टार्ट करना है, देन एक नोट छोड़ना है, देन यू प्ले, देन पिछले वाला नोट जो था हमारा नेक्स्ट नोट था, देन एक नोट छोड़ना है, देन नेक्स्ट नोट, देन एक नोट छोड़ना है, देन नेक्स्ट नोट, देन एक नोट छोड़ना है, देन नेक्स्ट नोट, एक नोट छोड़ना है, देन नेक्स्ट नोट, देन एक नोट छोड़ना है, देन नेक्स्ट नोट, देन एक नोट छोड़ना है, एंड देन बैक टू व्हिच इज द रूट। ठीक है, ये खुद करो, जस्ट डू इट ऑन योर ओन। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो ट्रिक है इस चीज को, इस पैटर्न को याद करने का ट्रिक। इट्स अ वेरी 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 सिंपल थिंग, लेकिन आई थिंक इट्स अ रियली स्पेक्टेकुलर तरीका टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। एंड यू नो दिस इज फॉर एवरीबडी जो अटेंड कर रहे हैं एज वेल एज जो रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। जो एयर ट्रेनिंग होती है, हमेशा हम बात करते हैं एयर ट्रेनिंग वगैरह, यू नीड टू रिमेंबर योर मेजर स्किल्स। जैसे व्हेन जैकलिन वाज प्लेइंग, आई वाज एबल टू सिंग दैट, राइट? सो यू शुड बी एबल टू डू दैट एज वेल। अब अगर आप कोई भी नोट प्ले करो, लेट्स से इफ यू प्ले एन ए, you should be able to first of all sing the A major, the A major scale. Na 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 na. You should also be able to do the exercise. Na 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 na. Right? So this is all ear training. कि आपको you're so comfortable with the notes कि you should be able to sing it. उससे ना जब play करोगे ना तो you'll improvising में, I'm just saying from an improvising standpoint, अगर आप if you're able to sing the notes, no, you will just frame the solo in your mind before you actually start playing. क्योंकि जनरली आप देखोगे ना, अगर मैं किसी को बोलूँ कोई बैकिंग ट्रैक देता हूँ मैं और बोलता हूँ कि प्ले मी अ सोलो, दे माइट नॉट बी एबल टू प्ले अ सोलो। लेकिन अगर बोलूँगा सिंग अ सोलो, वो बहुत बढ़िया सिंग कर लेते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू मतलब मेंटली डू दैट। तो अगर आपकी एयर ट्रेनिंग हुई पड़ी है ना, देन यू विल जस्ट, अगर आप सिंग ईजिली कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दैट टू द फ्रेटबोर्ड अ लॉट ईजियर। ठीक है, always sing your scales, always sing your scales. Ashwin, I'll ask you to volunteer now whenever you're ready. ठीक है, एकदम स्लो जाना, लेकिन ट्राई करो, कोशिश करना खुद करने की। गलती होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन यू ट्राई इट आउट राइट नाउ कि टाइम चाहिए थोड़ा और? तुमसे बोल रहा हूं अश्विन में। यस, और कोई अश्विन नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा, नहीं, अशोक की फिंगर्स तो एकदम, अशोक की फिंगर्स आर फ्लाइंग इन द अदर वे, श्रेडिंग फिंगर्स है अशोक की तो अभी। सर क्योंकि मैं मीट पे हूँ इसलिए। नहीं ठीक है, बट आई एम जस्ट at least what I saw. हाँ, sorry, क्या अश्विन? I think, like, you know, if I see the pattern and I do, I think I'll be able to do. I know, but that's what I keep saying. No, मैं वर्कशॉप में क्यों बोलता हूँ लोगों को अटेंड करने को? Because I want you to be in that pressure situation and try to visualize that. अशोक, म्यूट कर लो अपने आप को। मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैं अश्विन कह रहा था कि देखो, देख के तो प्ले सब कर लेते हैं ना। मैं तभी तो, डोंट यू रिमेंबर, मैं अपनी वर्कशॉप में व्हाइट बोर्ड नहीं लेके आता था बीच में, बिकॉज आई वांटेड यू टू स्टार्ट थिंकिंग रादर देन मी शोइंग यू एवरीथिंग, राइट? सो इट्स ओके, डोंट लुक एट द पैटर्न, ट्राई टू विजुअलाइज इट ऑन योर ओन। नो, ये बताओ मेरे को, अगर मैं बोलता हूँ सी मेजर स्केल प्ले करना है, सी मेजर हमारा फोर्थ स्ट्रिंग पे कौन सा फ्रेट होता है? सॉरी, सी नोट हमारा फोर्थ स्ट्रिंग पे कौन सा फ्रेट था? फोर्थ स्ट्रिंग। I think this is the 10. टेंथ होता है ना, तो टेंथ फ्रेट जो था, टेंथ फ्रेट पे हमारी लिटिल फिंगर रखनी है आपको। एक सेकंड, आई एम जस्ट गेटिंग एन अर्जेंट मैसेज।
आप हाँ 10th फ्रेट पे अपनी लिटिल फिंगर रखो, राइट, एंड देन मैंने क्या बोला था, 4 1 3 4 2 4 1 2 4, राइट, सो प्ले दैट. राइट, तुम्हारा जो गलती से स्ट्रिंग बजा टैं, वो भी सही नोट था, बट वो एक तुम्हारा ऑक्टेव नीचे था. परफेक्ट परफेक्ट. ये हमारा स्केल हो गया 4 1 3 4 2 4 1 2 4. नाउ जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है उसको करो. 4 देन हमारा 1 नहीं आएगा, हम 3 प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड. तो डू दैट नाउ. So this is the pattern I want some clarity. Can you repeat So- it, like how to? तो ओके, सो सबसे पहली चीज, तो जब पिछली मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो व्हाई डिडंट यू रेज दिस क्वेश्चन तब, कि समझ में नहीं आया? Actually, I am from Tamil Nadu, so I can understand Hindi like but not like so much. So Okay, but then so it's like regardless of that, if you, that's okay. Regardless of that, if you don't understand something, you ask a question right away, right? So don't wait till the end of the class, because now we're actually working on the same pattern. दूसरी we're doing a second exercise, and now you're telling me first वाला pattern नहीं मार्को समझ में नहीं आया, but it's okay. So what you do is you start with a C, right? So you started with a C. Now if you were to go ascending a C major scale, you'll play D next. But what we're doing is we're jumping a note. So instead of a D, we're playing an E. So C to an E, right? So this is one set, C to an E, right? So this set is done. अब next set हम करेंगे with the next note, which is a D. अब D के बाद, if you were to go ascend, then the next note is going to be an E, but we'll jump that. We'll skip it, so we'll play an F. So it'll be C, E, D, F, E, G, right? So do this. At least, did you understand the exercise? I understand, sir, but if I see, if I see the pattern, I'll be able to analyze. I know, but I don't want you to see the pattern. That's what I'm saying. So I don't want you to see it. I want you to visualize it on the fretboard. You have the pattern right in front of you on the fretboard, no, buddy? So you don't need to be dependent on tabs or a diagram. Do that here. ठीक है? जब स्टेज में प्ले करोगे तो डायग्राम थोड़ा ना देखोगे, गिटार का फ्रेटबोर्ड देखोगे. So do this. So it'll be, you skip this note, तो next note कौन सा आएगा? That's right. Right? Then once Then- then I have to go behind one. Yes, that's correct. तो next वाला note हमारा था ये. Then you'll do this. ठीक है, it's okay. Don't worry, Ashwin. Don't worry. It's okay. So you practice. At least pattern समझ में आ गया ना? You understood the pattern? Cool. So now I'll tell you कि ये pattern कैसे बनता है. So it'll be, जैसे मैंने बताया था numbers में. So it'll be 4 4. So fourth string with the fourth fret. Right? Then we play 3 3. Then we play 3 1. Then 3 4. Then 3 4. Then 2 2. Then 3 4. Then 2 4. Then 2 2. Then 1 1. Then 2 4. Then 1 2. Then 1 1. Then 1 4. Then 1 2. Once again, ये जो नंबर्स मैं नॉमेनक्लेचर बोल रहा हूँ 1 1 2 4 3 4 4 4, जो पहला नंबर है दैट मीन्स द स्ट्रिंग, एंड सेकेंड नंबर मीन्स आपको कौन सी फ्रेट प्ले करना है. ठीक है? बिकॉज हम अभी जो पोजीशन हम कर रहे हैं अभी, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन में हमारा 1 फिंगर पर फ्रेट जा रहे हैं हम बिल्कुल आगे पीछे मूव नहीं कर रहे. सो हमारी फर्स्ट फिंगर यहाँ पे रहेगी इस फ्रेट में, सेकंड फिंगर मतलब फर्स्ट फिंगर हमारी 7th फ्रेट में रहेगी हमेशा, सेकंड फिंगर हमारी 8th फ्रेट में रहेगी, थर्ड फिंगर हमारी 9th फ्रेट में रहेगी, एंड फोर्थ फिंगर हमारी 10th फ्रेट में रहेगी. ये फिक्स्ड है इस पैटर्न में, बिल्कुल मूव नहीं करेगा. सो व्हेन आई से 2 4, आई मीन कि सेकेंड स्ट्रिंग पे हमारे को
फोर्थ फिंगर रखनी है. सो विद दिस ऑटोमेटिकली मीन्स द 10th फ्रेट. ठीक है. सो वंस अगेन हमारा पैटर्न बन गया. सॉरी. खुद ही भूल गया मैं यार. ये जनरली क्या होता है कि व्हेन यू प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर टेम्पो, नो, इफ यू हैव टू स्लो इट डाउन, सब दिमाग से निकल जाता है. जब स्लो करना होता है ना, इट्स रियली हार्ड. ओके, चलो, एटलीस्ट समझ में आ गया करना क्या सबको. इवन दो हो नहीं रहा होगा, पर समझ में आ गया ना करना. इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट मूविंग अप इन थर्ड्स. नाउ आई विल टेल यू द कूल वे टू रिमेंबर दिस. एंड दिस मेथड विल नॉट ओनली मेक इट ईजियर टू रिमेंबर बट ऑल्सो यूज इट इन योर इम्प्रोवाइजेशन. अब जनरली जब हम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1 3. हमने करा 1 3, फिर हम करते हैं 2 4, फिर हम करते हैं 3 5. That's how we do it, right? That's the theoretical way to do this, and that's the right way to do this, right? C E D F, then E G. So 1 3 2 4 3 5. That's the right way. Diatonically हम जा रहे हैं C D and E. बट इस एक्सरसाइज में मेरे को बहुत मुश्किल होती थी ऐसे याद करना इन थर्ड्स. तो मैं क्या करता हूं, नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस. जस्ट चेक दिस आउट. दिस इज सो इजी. यू स्टार्ट विद सी. ठीक है. तो हम अपना फर्स्ट पोजीशन वाली पे ही जा रहे हैं. इसी मतलब जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी उसी पे जा रहे हैं. तो वी प्लेड अ सी. नाउ वी जस्ट मूव अप इन थर्ड विच इज एन ई, राइट. लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, हम पैटर्न याद कर रहे थे. सी ई, दैट्स वन पैटर्न. Then DF, that's the other pattern, correct? हम हर नोट के साथ उसका थर्ड पे जा रहे थे. Now I'm saying you don't think of it like this. You think of it like C, then E, and then उसका पिछले वाला नोट. So versus thinking C E D F, I'm saying you think of it like this: C, then E D, then F E. So F E. Then GF. अभी थोड़ा सा it might just take you a little time to just absorb this and digest it. लेकिन think of it like this. Versus हम thinking C E, then DF, then EG. हम सोच रहे हैं C standalone. then हम सोच रहे हैं DE, sorry ED, then FE, then GF. Right? So एक बार मैं ऐसे करता हूँ. Let me just draw it visually for you, ताकि it'll just be even easier. All right. So हमारी जो एक्सरसाइज थी, so we started with a C, right? So हमारा नोट्स है C D E F G A B C. हमारा C मेजर स्केल है. तो हमारी जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने करा पहले C, फिर हमने पहले करा E. तो ये हमने एक पेयर मान लिया. फिर हम C के नेक्स्ट नोट पे गए विच इज़ अ D, और उसके एक छोड़ के गए विच इज़ एन F. ये हमने एक पेयर मांग लिया. सो हम थर्ड्स को पेयर्स बना रहे हैं ना, C के साथ E, D के साथ F. फिर हम D के नेक्स्ट नोट गए विच इज़ एन E, और E का हमने पेयर बनाया एक छोड़ के विच इज़ अ G. फिर हम E के नेक्स्ट नोट पे गए विच इज़ एन F. F का एक छोड़ के हमने बनाया A. तो हमने ऐसे करके पेयर्स बनाए C D E F, और इन सब के हम पेयर्स, इन सब के हम थर्ड्स पे जा रहे हैं. C का E, D का F, E का G, F का A, राइट. सो दिस इज टेक्निकली व्हाट द एक्सरसाइज इज, कि आप हर डायटोनिक जो नोट है हमारा स्केल का, उसके थर्ड आप ऊपर जा रहे हैं, थर्ड आपको प्ले कर रहे हैं पेयर करके. बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, आई डोंट वांट यू टू थिंक ऑफ इट लाइक C E D F E G. आई वांट यू टू थिंक ऑफ इट लाइक C, देन E, एंड एक उसके पिछले वाला E D, then F E, then G F, then G F, then A G, and so on. मतलब एक आगे जा रहे हो, then टक 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 टक. It's the same thing, no? C E D F E G, C E D F E G. But now आप इसको ग्रुपिंग, जो आप इसकी ग्रुपिंग आपने अलग कर दी है. ठीक है? It's okay. I wasn't expecting all of you to say, oh wow, although that will be the response. You will give me that response when you're later on practicing this at home.
जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना, you will give me that response. Trust me on this one. So it's okay. You don't have to react right now, but it's a game changer thing. ठीक है? So verses C E D F E G F A. You're doing ta 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 ta. Versus doing tan 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 tan. You're doing tan 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 tan. That's like a magic trick. जिसमें the audience is like, okay, big deal. But you will know it's a big deal when you practice. But anyways, so that's the cool thing. And the beauty of this is कि इसको आपको जब play करोगे ना, you'll find it so easy to remember this. And the other thing is, जैसा आपने देखा भी मैंने play करा, it seemed a lot more expressive versus अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 3 2 4 कर रहा हूँ, 1 3 2 4. अब मैं कर रहा हूँ ये तो मैं तो ऐसे रैंडम मार लिया, बट you understand what I'm saying, no? That's a lot more expressive as compared to I'm playing the same thing. I'm playing the same notes in the same order. लेकिन this is very tun 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 versus ठीक है? Don't worry. I'm used to this. I'm used to my students giving a very ठंडा reaction. लेकिन गारंटी होती है कि अगली क्लास में they're like, सर वो बहुत सही था. So don't worry. ठीक है? But anyways, so you've understood आपको करना क्या है. So you need to take this exercise going up in thirds and इसको आपको दोनों octaves के हमने करे हैं, दोनों पे आपको practice करना है, right? And this is just the workout that I want you to do for the next 1 week. Keep doing this. और कोई पोजीशन में जाने की जरूरत नहीं है. If you want to make it really interesting, really challenging, तो आप ऐसा करिएगा, you practice this on all the 12 keys. On all the 12 keys मतलब ऐसा नहीं है कि C करा फिर C sharp किया फिर D करा फिर D sharp किया. No. केशव, what is the, मैं किस तरीके से अपने 12 keys में प्रैक्टिस कराता हूँ? Okay, sorry guys, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया. But anyways, the point मैं क्या बोल रहा था? I was saying कि हाँ, so हमने 2 positions ली हमने मेजर स्केल की, right? Root on the 6th string, root on the 4th string. और दोनों पे हमने एक तो नॉर्मल अपना रन डाउन किया, असेंडिंग डिसेंडिंग, एंड दूसरा हमने वही 1 3 1 3 वाला पैटर्न किया. ठीक है? सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस फॉर द नेक्स्ट 1 वीक. जस्ट स्टिक टू 1 पोजीशन. एंड जो मैं बोल रहा था कि अगर आपने मल्टीपल स्केल्स में जाना है, सो आप क्या करिएगा, अपना लाइव वर्कशॉप्स में आपको, लाइव वर्कशॉप नहीं सॉरी, जो हमारी मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास में आपको सर्कल ऑफ फोर्थ्स का मेरा दिख जाएगा. मास्टर क्लास थी, मैंने 2-3 घंटे की मैंने वर्कशॉप मास्टर क्लास करी है सर्कल ऑफ फोर्थ्स. उसमें आपको backing track मिल जाएगा in both major as well as minor, right? So use that backing track and practice this on all the 12 keys अगर आप चाहो तो, you know. So you'll start with C यहाँ पे, then you move on to F, then you go to B flat, then E flat, then A flat, then D flat, then G flat, then B, then E, then A, then D and G, right? So you practice on all 12 keys. ठीक है? That's what I want you to do. Cool? अगर आप चाहो, अगर if you want to challenge yourself, नहीं तो आप सिर्फ एक ही पोजीशन को भी कर लोगे, that's pretty good as well. ठीक है? Do that and अगली क्लास में मेरे को बताना about the aha moment because I want that. I want to hear that. I'm just joking. So anyways, clear हो गया सबको? So इसका जो PDF होएगा मैं क्लास के साथ उसमें PDF भी डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट. उसमें हम सारे जो पोजीशन होंगी सब मार्क होंगी एंड ये जो पूरा एक्सरसाइज है इसका मैं टैब करके डाल दूंगा. कूल? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस ऑन व्हाट वी डिड टुडे? ओके, नो क्वेश्चंस. चलो फिर देन आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. Next we'll continue with more major scale workouts. ठीक है? Yeah, this was good. Very challenging, but good. This is not, trust me, जो challenge है, challenge levels will keep increasing. But this मेरे हिसाब से this is a beautiful exercise. And मैंने आपको बताया था ना यार,
again, the da 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 da. This is like an amazing phrasing exercise. You'll see this in so many jazz solos, and the जो मैंने आपको तरीका बताया ना, dun ten tone ten tone ten tone, that actually makes it so much better, so much more pleasing as well. Right? Versus. So just practice that. And यही सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की यार. लोग ना स्केल को up and down कर लेते हैं, and then the solos are like to 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 to. That won't sound nice. No, you have to break your habits. ठीक है? तो चलो, cool. So just, which is why I'm saying, just focus on this particular workout only. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Right? चलो. See you guys next Sunday then. Okay. Bye. Bye.